Morning students, today we are going to start our next exercise, that is the construction of triangle. This one is the last exercise of the last chapter. Now a triangle has a three sides. We all know that the sum of the triangles are also 180 degree. It has three sides and the sum of any two sides is always greater than the third side. Triangle has a three side, sum of the two side is always greater than from the third side. Now to construct a triangle, when there are the three types, like first one, if the three sides are known, ठीक है. Second one is the two sides are known and one angles are also known, but one side is not, don't know about that side. And third one is the one side and two angles are known. Then how to construct an angle? First one is the to construct a triangle when three sides are given. Now how to construct an angle when the three sides are given? We will construct a triangle ABC such as AB is 9.5 centimeter, BC is 10.6 centimeter and AC is 8 centimeter. How to construct when the three sides are given? We will draw any one line, take as a base. क्या करना है, कोई भी एक जो कंस्ट्रक्ट, जब थ्री साइड्स गिवन है, किसी भी एक लाइन को हम बेस ले लेंगे, उसको हमने स्केल से ड्रॉ कर देना है. ठीक है, बाकी जो लाइंस ड्रॉ करनी है वो हम कंपास से ड्रॉ करेंगे. विद द हेल्प ऑफ द कंपास वी विल ड्रॉ द कंस्ट्रक्ट द ट्राइंगल. डिड यू अंडरस्टैंड? फर्स्टली व्हाट वी विल डू, वी विल ड्रॉ रफ स्केच लाइक ट्राइंगल. वी विल ड्रॉ roughly, we will draw with the help of this rough sketch. It's easy to draw the with the compass. Now we will give the name like A, B and C. ठीक है, A B कितना है 9.5 centimeter, B C is a 10.6 centimeter and this one is a 8 centimeter. What we will do, we will take A B as a base. We will draw A B with the scale, with the ruler. Now we will draw A B as a 6 centimeter. From here we will start from here we will start, and how many, 9.5, 9 is here, 0.5 is here, this one. ठीक है, up to here. Now we will draw this line. With the help of this rough sketch, we will draw, firstly we will take a AB as a base and we will draw this AB with the help of the ruler. 9.6. We will draw here 9.6. Start from this 0 and 9.5 here. ठीक है, we will draw this with the ruler and give the name, that is a and B, and measure also you write here. ठीक है. Now what we will do, now AC is a 8 centimeter. What we will do, we will open the compass 8 centimeter, this much. Eight centimeter. This much, and we will put this at point A and mark, draw an arc. Now after that, BC is a 10.6 centimeter. We will open this compass 10.6 centimeter, this much. B पे रख के compass and we will draw arc, this one. दोनों आर्क एक दूसरे से इंटरसेक्ट होनी चाहिए, मतलब एक दूसरे को कट करनी चाहिए. ठीक है, जिस पॉइंट पे वो कट करेगी, अब इसको भी उतने सेंटीमीटर पे बढ़ा देते हैं. जिस पॉइंट पे ये दोनों आर्क कट कर रही है उस पॉइंट को नाम दे दो C, एंड अब इस पॉइंट को नाम दिया C और इन सबको मैच कर दो. Here we will write a measure also, that is a 8 centimeter and 10.6 centimeter. ठीक है. Now after that what we will do, we will write points also, steps also. We will write the steps also. Step 1 is that हमने वो स्टेप जैसे जैसे बनाए हैं
मतलब जैसे जैसे हमने कंस्ट्रक्ट किया है ना, उसी अकॉर्डिंग हम क्या लिखेंगे, स्टेप्स लिखेंगे। स्टेप 1 में क्या लिखेंगे, हम लिखेंगे ड्रॉ ए बी 9.5 सेंटीमीटर। आफ्टर दैट सेकेंड स्टेप क्या था कि हमने क्या किया है, बी पॉइंट पे ए पॉइंट पे रेडियस 9 कितने की आर्क लगाई है, 8 सेंटीमीटर की, ठीक है, 8 सेंटीमीटर की आर्क लगाई है। मतलब हमने क्या किया, आर्क ऑफ द रेडियस, कंपास को 8 सेंटीमीटर से ओपन किया और ए को सेंटर लेके हमने क्या आर्क लगा दी, कितनी, 8 सेंटीमीटर की। सेकेंड स्टेप में हमने क्या किया था, बी को सेंटर मान के और रेडियस कितना, 10.6 सेंटीमीटर आर्क कंपास ओपन करके और फिर आर्क लगा ली। जिस पॉइंट पे ये दोनों आर्क एक दूसरे को कट कर रही है, उसको हमने पॉइंट को नाम दे देना है सी, ठीक है। देन आफ्टर ज्वाइनिंग दीज ऑल दी lines and what we will get the triangle. Here steps, draw this and this. You have to write the steps also. If the sum अगर 3 मार्क्स का है ना, उसमें अगर 1.5 मार्क्स कंस्ट्रक्शन का होगा और 1.5 मार्क्स स्टेप का होगा, कंस्ट्रक्शन के स्टेप्स जो हैं, ठीक है। नाउ नेक्स्ट वन, to construct a triangle when two sides and the include angles are given. Now in that 2 sides are given and 1 angles is given. Construct a triangle ABC in which BC is a 7 centimeter, AB 5 centimeter and ABC मतलब B angle कितना है, ABC that means ये किस एंगल की बात कर रहे हैं, B एंगल की बात कर रहे हैं, that is a 60 डिग्री। Now what we will do, we will take one एज अ बेस अब किसको लेके चलेंगे, अब एंगल गिवन है, एंगल किस पॉइंट पे गिवन है, बी का गिवन है ना। सो हम क्या करते हैं कि बी वाला ही हम कोई बेस लेके चलते हैं। हमने क्या किया, बी सी को बेस ले लिया 7 सेंटीमीटर, जिसको हमने रूलर की हेल्प से ड्रॉ कर दिया। हमने बी सी क्यों लिया, ए बी में भी तो बी है ना कि 60 डिग्री का बन जाए। अगर ए बी में हम ड्रॉ करते, बी एंगल हमने इधर बनाना था तो वो थोड़ा सा मतलब और टाइप का बन जाता है, ट्राइंगल मतलब पता ही नहीं लगता। तो हमने क्या किया, BC को हमने एज अ बेस ले लिया। मतलब हम क्या करेंगे, BC को 7 सेंटीमीटर ड्रॉ करके फिर क्या करेंगे, अब देखो, अब सीधा तो हम AB मतलब B पे रख के A की आर्क लगा ही नहीं सकते 5 सेंटीमीटर की, क्योंकि आर्क इधर भी लग सकती है, इधर भी लगती है, कहीं भी लग सकती है। पहले हम क्या करेंगे, B पर हम 60 डिग्री का एंगल बनाएंगे। कैसे बनाएंगे, पहले हम क्या करते हैं, जो हमने BC है वो रूलर की हेल्प से हमने 7 सेंटीमीटर ड्रॉ कर ली। अब क्या करना है, नाउ B पे हमने 60 डिग्री का एंगल बनाना है विद कंपास। कंपास से हम 60 डिग्री का एंगल कैसे बनाएंगे, फर्स्टली वी विल ड्रॉ एनी लाइन, मतलब हमने वो लाइन ड्रॉ कर लिया। फिर हमने कंपास को जितनी आप चाहे उतनी खोल सकते हो, इट्स योर विश हाउ मच यू वॉन्ट टू ओपन दिस, विद हाउ मच रेडियस यू वॉन्ट टू ओपन दिस, इट्स योर विश, ठीक है। नाउ अब इतनी मैंने ओपन कर ली, इतना मैंने रेडियस ले लिया, ठीक है। अब क्या करना है कि मैंने यहाँ पर रख के कंपास को यहाँ पर रखा और मैंने एक लाइन ड्रॉ कर दी ऐसे इस लाइन पे, ठीक है। आफ्टर दैट इसी के साथ अब हमने क्या करना है, इस पे रख के इस पॉइंट पे जहाँ पर ये जो आर्क है वो इस लाइन को मीट कर रही है, उस पर रख के हमने एक आर्क लगा देनी। उतनी ही खोलनी है कंपास, उससे ज़्यादा नहीं, मतलब जितनी आपने पहले खोली है ना उतनी की हेल्प से आपने एक और आर्क लगा देनी। अब देखो ये जो यहाँ पर दोनों कट कर रहे हैं ना, ये एंगल ये आप ड्रॉ कर देना, आप प्रोटेक्टर की हेल्प से आप देखना वो एंगल 60 डिग्री का ही बनेगा, ठीक है। ये जो एंगल बन गया अब 60 डिग्री का है, इसको मैच कर दो। जिस पे दोनों ये इंटरसेक्ट कर रहे हैं ना उसी से लाइन ड्रॉ कर दो, ठीक है। ये मैंने लाइन ड्रॉ कर दी जिस पे दोनों ये इंटरसेक्ट कर रहे हैं, उसी पे पॉइंट में से लाइन लेनी है। उसके बाहर अगर होगी आगे पीछे तो हमारा एंगल 60 का नहीं होगा। ये एंगल कौन सा हो गया, 60 डिग्री का हो गया। कंपास से आपने एंगल कैसे बनाना है, जैसे कोई भी लाइन, अब इसमें तो हमने 7 सेंटीमीटर बेस लेके कर रहे थे, बी पे हमने 60 डिग्री का एंगल बनाया था। हमने कंपास को जितना मर्जी रेडियस आप लेके उसको ओपन कर सकते हैं, ओपन करके बी पॉइंट पे आग रख के आग लगा देनी है हमने, ठीक है। आफ्टर दैट जिस पॉइंट पे ये दोनों मीट कर रहे हैं इस लाइन बेस पे, ठीक है, उस पे रख के हमने उतनी रेडियस से हमने उस पे रख के ये लाइन जो हमने ड्रॉ किया उस पे आग लगा देनी है, फिर उसको मैच कर दी। ये जो एंगल बना है वो है 60 डिग्री का एंगल। अब हमने क्या करना है, ए बी हमें कितना दिया था
5 सेंटीमीटर गिवन था, ठीक है। दैट मीन्स बी पे रख के हम 5 सेंटीमीटर की कंपास ओपन करेंगे। 5 सेंटीमीटर वो कितना है, यहाँ से यहाँ तक 5 सेंटीमीटर की ओपन करके हमने क्या करना है, बी पॉइंट पे उसको रख के जहाँ पर 60 डिग्री का एंगल बनना है उसी लाइन पे 5 सेंटीमीटर की आर्क लगा देनी, ये वाली। अब जिस पॉइंट पे ये दोनों कट कर रहे हैं, ये पॉइंट पे, वो क्या है हमारा ए पॉइंट है, उसको हम क्या नाम दे देंगे, ए पॉइंट कर देंगे। अब इस पॉइंट को इस सी से हमने मैच कर देना है, ठीक है। अब मैंने क्या कर दिया, इस पॉइंट पे, जिस पॉइंट पे ये दोनों इंटरसेक्ट कर रहे हैं उसको ए नाम दे दिया और उससे सी के साथ उसको मैच कर दिया, ठीक है। मेजर जरूर लिखना है, इसका कितना था 5 सेंटीमीटर, अगर ना लिखोगे तो इसके भी मार्क्स कट होंगे। डिड यू अंडरस्टैंड, ठीक है। ये पॉइंट क्या हो गया, ये पूरे को तो हमने वैसे ही डी नाम दे दो, कोई भी दे दो, ठीक है। स्टेप्स फिर आप लिखोगे जैसे क्या लिखे बुक पे, लाइन सेगमेंट बी सी ऑफ द लेंथ ऑफ द draw line segment BC. We will draw length BC. After that what we will do, we will draw angle 60 degree at a point B. B पे हमने पॉइंट पे हमने क्या कर लिया, 60 डिग्री का एंगल बना लिया, ठीक है। देन आफ्टर दैट व्हाट वी विल डू, वी विल मार्क आर्क, ड्रॉ आर्क ऑफ द रेडियस 5 सेंटीमीटर। कितनी लेंथ थी बी और ए की, 5 सेंटीमीटर। हमने क्या किया, आर्क ड्रॉ करनी है, कितने सेंटीमीटर कंपास ओपन करनी है, विद द रेडियस ऑफ द 5 सेंटीमीटर, जितनी उसकी लेंथ बताई हुई है उसको हमने बी पे रख के वही जहाँ पर 60 डिग्री का एंगल है उसी लाइन पे हमने क्या कर दिया, 5 सेंटीमीटर की आर्क लगा दी। डिड यू अंडरस्टैंड। आफ्टर दैट वेयर दे बोथ आर intersect each other, we will match that, we will give the name of that point is A and after that match it and we will get the triangle. Did you understand? To construct a triangle when one side and two angles are given. अब इसमें क्या है, एक साइड और दो एंगल गिवन है। आपको कंपास की हेल्प से 60 डिग्री का एंगल तो बता दिया, अब 45 डिग्री का एंगल आपको पहले बता देती हूँ, फिर हम बाद में ये कंस्ट्रक्ट करेंगे ट्राइंगल, ठीक है। 45 डिग्री का एंगल कैसे बनाएंगे, हम पहले इसके लिए 90 डिग्री का एंगल बनाएंगे। हमने सपोज यहाँ पर लाइन ले ली, लाइक को कितनी मर्जी लाइन ड्रॉ कर लो, लाइन ड्रॉ कर ली BC। अब क्या करना है हमने हमने अब इसके के लिए क्या चाहिए, 45 डिग्री का एंगल बनाने के लिए फर्स्टली वी विल ड्रॉ एन 90 डिग्री एंगल। मतलब हाउ टू मेक अ 90 डिग्री एंगल, बट वी विल डू, वी विल ओपन द कंपास एज मच एज यू वांट, मतलब अपनी मर्जी के अकॉर्डिंग जितने रेडियस के साथ आपने कंपास ओपन करनी है आप कर सकते हो। मैंने इतनी, आपकी मर्जी है इतनी कर, मतलब जितनी मर्जी कर लो। क्या करना है, फिर बी पे रख के हमने मार्क कर लेना है, ये ड्रॉ कर ली। अब इसी रेडियस के साथ हमने क्या करना है, जिस पॉइंट पे ये दोनों लाइंस मिल रही है उस पे रख के, ये एंगल हमारा कौन सा था, हमने ड्रॉ किया 60 का। इसके बाद कौन सा आता है वह, इसका डबल, वो इसी लाइन पे, वो कौन सा हो गया 120 का। अब हमने बनाना क्या है 90 डिग्री का। 90 डिग्री का एंगल बनाने के लिए अब यहाँ 60 पे जहाँ पर ये दोनों कट कर रही है ना 60 वाला, उस पर रख के हमने आर्क लगा देनी है, ठीक है, यहाँ पर, ठीक है। और ये जो एंगल होता है ये 120 का होता है, इस पर रख के भी हमने आर्क लगा देनी है जहाँ पर ये दोनों कट कर रही है, ठीक है। अब जिस पॉइंट पे वो कट कर रही है ना, ये पॉइंट पे, इसको कोई भी नाम दे दो और इसको बी के साथ ड्रॉ कर दो, ये बन जाएगा 90 डिग्री का एंगल, ठीक है। What we will do, we will mark a arc, we will put compass here and mark a arc. आर्क लगा लेनी है यहाँ पर, उतने रेडियस से, स्टार्टिंग में जितनी आपने कंपास ओपन किया है उससे उतनी रेडियस से ही सारी आर्क लग रही है, ठीक है। आफ्टर दैट यहाँ पर रख के लगा लेनी आर्क, वो कहाँ थी, ये वाली, ठीक है। अब ये दोनों जहाँ पर इंटरसेक्ट कर रही हैं वो पॉइंट कौन सा है, ये वाला, ठीक है। अब कहाँ क्या करना है, यहाँ पर हमने लाइन मार्क कर देनी है, मतलब इसके जहाँ से ये इंटरसेक्ट कर रही है उससे पास हो रही है, ठीक है। ये मैंने रूलर से नहीं बनाई, सो आप विद द हेल्प ऑफ द रूलर, ठीक है। अब आपने इसको ड्रॉ किया, बिल्कुल सीधी होनी चाहिए, ठीक है, जहाँ से मतलब इंटरसेक्ट कर रही है उसी से पास होनी चाहिए। दैट मीन्स ये जो एंगल बना है ना, ये बना है 45 डिग्री का, ठीक है।
पहले क्या करना है, हम ऐसे ही बेस ले लेते हैं, जितनी कंपास आप जितने रेडियस से खोलना चाहते हैं खोल सकते हैं। अब उसी पॉइंट पे हमने क्या किया, आग लगा दी। आफ्टर दैट वही रेडियस से हमने आग लगा दी, एक यहाँ पर, फिर यहाँ पर रख के यहाँ पर। ये एंगल हो गए 120 का और 160 और 120 का। अब 60 और 120 की हेल्प से हम 90 का बनाएंगे। यहाँ पर रख कर कंपास हमने यहाँ आग लगा दी, यहाँ पर रख के यहाँ आग लगा दी। आग हमने वहाँ पर लगानी, यहाँ पर ये दोनों इंटरसेक्ट करें। जहाँ पर इंटरसेक्ट कर रहे हैं उसी में से पास करते हमने लाइन ड्रॉ कर दी। ये एंगल बन गया 90 डिग्री का। और 45 का बनाने के लिए हमने क्या किया, यहाँ पर रख के उतने रेडियस की कंपास को यहाँ पर आर्क लगा दी, और यहाँ पर जहाँ पर 90 डिग्री का वहाँ पर रख के हमने आर्क लगा दी। उसको जहाँ पर दोनों कट कर रहे उसको मैच कर दिया। ये कौन सा बन गया, 45 डिग्री का। अब इस हम कैसे ड्रॉ करेंगे ट्राइंगल। BC 8.2 सेंटीमीटर, हमने क्या किया, BC हमने रूलर की हेल्प से ड्रॉ कर ली 8.2 सेंटीमीटर। अब B एंगल कितना बताया, ABC, दैट मीन्स B एंगल की बात कर रहे हैं वो 60 डिग्री है, और AC दैट मीन्स C एंगल कितना है, 45 डिग्री। अब हमने ड्रॉ करना है। अब देखो ट्राइंगल बनाना है, यहाँ पर तो हमने 60 नॉर्मल वैसे ड्रॉ कर दिया। अब यहाँ पर जब हमने ड्रॉ किया ना, हमने 45, आपको पता है प्रोडक्टर में एक एंगल जो होते हैं, अगर हम ज़ीरो वाले नीचे वाले से देखने शुरू करते हैं तो हम नीचे वाले देखते हैं, ठीक है। अगर सेंटर हम यहाँ पर ये लाइन अगर इधर रख के करते हैं, मतलब विद द हेल्प ऑफ द प्रोडक्टर, एक्चुअली अब मेरे पास है नहीं बट चलो आप देख लेना। अब इधर हमने क्या करना है, इधर वाली लाइन को हमने बेस ले लिया है, दैट मीन्स ही हमने एंगल कौन से देखने हैं, ऊपर वाले एंगल देखने हैं। मतलब इधर पॉइंट पे रख के हमने क्या करना है, 90 डिग्री का एंगल वैसे ही बना लेना है, ठीक है। यहाँ पर 60 का हो गया। अगर ऊपर वाले एंगल को देखें तो हमने यहाँ पर ऐसे 60 का बना लिया और फिर 90 का बना लिया, उसी की हेल्प से हमने 45 डिग्री का एंगल बना लिया। जब दोनों लाइंस को हम मैच करेंगे ना, जिस पॉइंट पे दोनों मीट कर रही हैं वो हमारा A पॉइंट हो जाएगा और हमने कंस्ट्रक्ट कर देनी है एंगल, ठीक है। अब BC हमने कितनी ड्रॉ कर ली, 8.2 सेंटीमीटर। अब क्या करेंगे, हम B पे रख के 60 डिग्री का एंगल बनाएंगे। कैसे बनाएंगे, वही सेम प्रोसीजर, कंपास ओपन कर लो, जितने रेडियस से आप कर सकते हो, आपकी मर्जी है, ठीक है। मैंने क्या कर दिया, यहाँ पर आर्क लगा दी, ठीक है। अब 60 का एंगल कैसे बनेगा, ये वाला एंगल यहाँ पर रख के कंपास, और ये एंगल कौन सा बन गया, 60 का। 60 का एंगल तो बिल्कुल सिंपल है, ठीक है। अब हम ड्रॉ कर देंगे लाइन जहाँ पर दोनों पॉइंट एक दूसरे से इंटरसेक्ट कर रहे हैं, उसी से पास करके। ये इस लाइन को हमने ड्रॉ कर दिया, इसको पूरे को एक बार नाम दे दिया E, ठीक है। और ये एंगल कौन सा आ गया, 60 डिग्री का। अब क्या करते हैं, उतने से ही हमने जितनी यहाँ पर कंपास ओपन किया है उसी के अकॉर्डिंग यहाँ पर आर्क लगा के 45 डिग्री का एंगल बनाएंगे। वो कैसे, यहाँ पर रख के ये वाला। अब हमने इस लाइन को इधर से देख रहे हैं तो ये बेस है, मतलब हम कौन से वाले प्रोडक्टर में ऊपर वाले एंगल देखेंगे जब इसको बनाएंगे, ठीक है। यहाँ पर क्या होएगा, 60 डिग्री का, ठीक है। फिर क्या बनेगा, ये हो गया 120 का। अब इसकी हेल्प से 90 का बना देंगे। कैसे, यहाँ पर आग लगा के और यहाँ पर आग लगा के, जहाँ पर दोनों कट कर रही हैं उसको हमने मैच कर दिया, ठीक है। जहाँ पर दोनों कट कर रही हैं वहाँ से हमने क्या कर दिया, लाइन ड्रॉ कर दी। अब क्या कर रहे हैं, उसी रेडियस से हमने यहाँ पर रख के यहाँ पर आग लगा देनी है, ठीक है। और यहाँ पर रख के यहाँ पर, वहाँ करनी है जाना, दोनों कट कर रही हैं, ठीक है। हेयर एंड हेयर, मतलब कहाँ पर कट कर रही है, यहाँ पर। मतलब ये एंगल कौन सा आएगा, आप ड्रॉ करेंगे लाइन तो कौन सा बनेगा, 45 डिग्री का, ठीक है। अब इसको हमने ड्रॉ कर लिया, ये कौन सा एंगल बन गया, 45 डिग्री का, ठीक है। हमने उतनी ले लिए जहाँ पर दोनों कट कर रहे हैं। अब जहाँ पर दोनों मीट कर रहे हैं उस पॉइंट को नाम दे दिया हमने A, ठीक है। तो हमारी ट्राइंगल बन गई ना ABC। डिड यू अंडरस्टैंड। सेम स्टेप आप यहाँ पर बुक पे लिखे हुए, विद द हेल्प ऑफ दिस you can write the steps also. Now next one is to construct an equilateral triangle when its side is non. Equilateral triangles क्या होती है, जिसकी तीनों साइड सेम हो, सेम लेंथ विद द सेम लेंथ, दैट इज कॉल्ड इक्विवेलेंट ट्राइंगल। अगर उन्होंने क्या, हाउ टू कंस्ट्रक्ट दैट वन ट्राइंगल इफ द वन साइड इज नॉन सेम। अगर एक साइड हमारे पास देखो ABC ट्राइंगल कंस्ट्रक्ट करनी है, इक्विलेटरल ट्राइंगल उन्होंने बोला साइड क्या है, 6 सेंटीमीटर, मतलब साइड बता दी हर किसी की कितने सेंटीमीटर, 6 सेंटीमीटर। इक्विलेटरल एंगल है, दैट मीन्स AB, BC एंड CA तीनों की साइड क्या आएगी, 6 सेंटीमीटर। अब इसमें क्या है, तीनों साइड्स गिवन है, साइड्स गिवन है, देन हाउ टू कंस्ट्रक्ट अ ट्राइंगल, वी ऑलरेडी डन दिस वन। हाउ टू कंस्ट्रक्ट दैट द 3 साइड्स आर गिवन, ओके, इट्स इजी।
हाउ टू डू दिस वन, ठीक है. नाउ सेम एज अ फर्स्ट कंस्ट्रक्शन विच वी ऑलरेडी डन. नेक्स्ट वन इज टू कंस्ट्रक्ट एन आइसोसेलेस ट्राइंगल. आइसोसेलेस ट्राइंगल कौन सी होती है? जिसकी दो साइड सेम हो और वन एक इक्वल ना हो. इन दिस ट्राइंगल ABC इन विच BC इज अ 7.3 सेंटीमीटर. एंड अगर देखो जो आइसोसेलेस ट्राइंगल होता है, अगर दो साइड्स इक्वल होती है, दैट मीन्स ये उनके दो एंगल्स भी क्या होते हैं? इक्वल होते हैं, ठीक है. अब इसमें क्या है? BC हमें 7.3 सेंटीमीटर गिवन है और साथ ही उन्होंने बता दिया दो एंगल, मतलब जो दो साइड इक्वल है ना उनके एंगल बता दिए, साइड की लेंथ नहीं बताई, ठीक है. अब ये कैसे कंस्ट्रक्ट करेंगे? जब एक साइड गिवन और दो एंगल गिवन हो. कैसे? बिल्कुल सेम एज दिस वन, थर्ड वन विच वी ऑलरेडी डन. फर्स्टली वी विल टेक अ बेस एंड आफ्टर दैट वी विल ड्रॉ एंगल, ठीक है. कैसे करेंगे? इसमें BC 7.3 ड्रॉ कर लिया, देखो कैसे रफली ड्रॉ कर लिया. 7.3 BC है, ठीक है. और B और C दोनों एंगल कितने बताए हुए हैं? ये 7.3 बताया हुआ है. एंगल कितने बताए? 60 डिग्री के. वो कैसे? कंपास की हेल्प से ऐसे करके जितना रेडियस उसके साथ आर्क लगा के, ये हो गए 60 का एंगल. सॉरी, ये जहाँ पर कट करिए. इधर कैसे करेंगे? दिस वन. इधर हम देखेंगे ऊपर वाला एंगल 60 का कहाँ आता है, ठीक है. वो ये वाला बन गया, ठीक है. इनको क्या कर देना है? जहाँ पर कट कर रहे हैं वो उस पॉइंट का नाम देना है, ठीक है. बिल्कुल थर्ड वन की जैसे है. नाउ टू कंस्ट्रक्ट एन आइसोसेलेस ट्रायंगल व्हेन इक्वल साइड एंड द वर्टिकल एंगल्स आर गिवन. अब उसमें क्या था? व्हेन द बेस एंड द बेस एंगल्स आर गिवन. वही एक बेस बता दिया था और दो उसके एंगल्स बता दिए थे. अब इसमें क्या है कि उसमें इक्वल साइड्स की लेंथ बता देंगे और एक एंगल बता देंगे, ठीक है. उसको कैसे कंस्ट्रक्ट करेंगे? इसमें एक जैसे दो एंगल, दो साइड्स बता दी, ठीक है, और एक एंगल बता दिया, ठीक है. इंक्लूडेड एंगल देखो AB और BC हम एज इट इज लेके चलेंगे. दैट टू साइड्स 4.2 एंड 4.2 एंड अदर एंगल्स वर्टिकल एंगल्स and that AB and BC we will take as a 4.2 centimeter because the isosceles triangle when the two equal sides are given and one vertical angles are given, that means the two line length AB is equal to 4.2 and BC is equal to 4.2, ठीक है. then one angle that we will take as a ABC is equal to 45. One angle we will take as a 45 degree angle. How to construct? Now two sides and one angle is given. That how to construct? According to this one construction. Did you understand? Now next one is the to construct a right angle triangle. Right angle triangle क्या होता है? जिसमें अब उन्होंने बोला है when the hypotenuse and the another sides are given. अब इसमें कैसे कंस्ट्रक्ट करेंगे? अगर एक साइड हाइपोटेनियस और एक साइड गिवन होगी. और राइट एंगल ट्राइंगल कैसे कंस्ट्रक्ट करेंगे? देखो राइट एंगल ट्राइंगल दैट मीन्स ये एक एंगल कौन सा आएगा? 90 डिग्री का आएगा, ठीक है. अब इसमें कैसे कंस्ट्रक्ट करेंगे? कंस्ट्रक्ट अ राइट एंगल ट्राइंगल ABC इन विच वन एंगल वी विल टेक ABC इज इक्वल टू 90 डिग्री. एक एंगल उसमें से 90 डिग्री का आएगा जिसमें से BC 8 सेंटीमीटर और AC 10 सेंटीमीटर है. एक इसमें से साइड गिवन है और एक हाइपोटेनियस गिवन है. अब इसमें हम बेस कौन सा ड्रॉ करेंगे? BC. क्यों? क्योंकि BC हमारे पास एक एंगल B वाला गिवन है, कौन सा है? 90 डिग्री है. दैट मीन्स ये BC को हमने किससे ड्रॉ कर देना है? स्केल से. विद द रूलर वी विल ड्रॉ BC 8 सेंटीमीटर. BC एज अ 8 सेंटीमीटर, ठीक है. नाउ व्हाट वी विल डू? We will construct the angle at a B 90 degree. How to construct it? You all know. Open the compass with the radius as much as you want, and at a B point we will mark a arc. ठीक है. 90 degree angle you all know how to construct. That is a 60 degree, ठीक है. And this one is a 120 degree. अब इसकी हेल्प से हम ये आर्क लगा देंगे, ठीक है. एंड दिस वन, ठीक है. अब क्या कर दिया हमने? इसको मैच कर दिया. आप स्केल की हेल्प से मैच कर देना जहाँ पर दोनों इंटरसेक्ट कर रही है. ये हमारा 90 का हो जाएगा. 90 का बिल्कुल स्ट्रेट होता है, ठीक है. अब क्या करना है? BC इतना आ गया. और अब क्या करेंगे? ये हम पूरी लाइन को नाम दे देते हैं, लाइक D दे दिया, ठीक है. अब AC कितना बताया हुआ है? 10 सेंटीमीटर बताया है. मतलब C को हम सेंटर मान के वहाँ पर 10 सेंटीमीटर की पहले आर्क लगा लेनी है. कंपास खोल लेनी है. 10 सेंटीमीटर विद द रेडियस 10 सेंटीमीटर. ओपन इट.
and we will put a compass here and mark a arc on this line. जो 90 डिग्री का हमने एंगल बनाया होगा ना, उस पर हमने आर्क लगानी है, ठीक है। वो आप इसको अब यहाँ पर और लंबा कर लेना, ठीक है। मतलब यहाँ पर दोनों पॉइंट कट कर रहे हैं, वो हमारा पॉइंट क्या होगा, ए पॉइंट, ठीक है। नाउ मैच दिस पॉइंट्स, यहाँ से लेके इसको इसके साथ मैच कर दिया सी के साथ, ठीक है। ये हमारा कंस्ट्रक्ट हो गई राइट एंगल ट्राइंगल। ये कितने सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर। डिड यू अंडरस्टैंड? स्टेप्स ऑल्सो सेम, ठीक है। नाउ यू हैव टू सॉल्व दिस एक्सरसाइज ऑन योर फेयर कॉपी. If you have any kind of problem, then you please ask me. I solve it.